Yeah. Since now I am putting a lot of efforts in revising my lecture note so that I can proudly share the lecture note with you. So therefore, you should be ready to just work hard in this course, because if teacher is working hard, then he will make you also work hard. So be ready for that. Be ready for solving lot of problems and solving lot of assignments. So coming back to what I was discussing in the last class, I was discussing about the system, then the system, so input and the system, and you have output, then interconnection of the systems. So interconnection में क्या होगा, cascaded type, series type, and in order of the connection matters. So I gave you some examples. So many times order will matter, many times order may not matter. So I gave you the example. Then parallel connection, यहाँ पे order का कोई नहीं है, कोई problem नहीं है. Then we have some system properties which are very important. So first one was a memory less system or without memory. So what happens, by just observing the expression or the equation of the system, you should be able to just figure out whether the memory will be required or not. Then I gave you some example. Then I gave you some example for a system with memory. Like if you are this system, ये क्या है आपका, रेड से लिखेंगे. Yes, so this is a integrator. So this is a integrator. So it is like accumulator, and it will require to integrate the signal or the value of the signal from minus infinity to the time which is under consideration. So it has to use memory. So then I then I gave you this example. So this is a unit delayed system. So again, this is depending upon the input at a particular instant only one instant only. But since this is a delayed system, ठीक है ना? So अभी at particular instant I will be observing the value that appeared at the previous instant. ठीक है? So means I have to store the value somewhere. ठीक है? So again, it is not memoryless. So delayed unit or delay unit, again it is a very important unit. You will find this delay unit to be used in many subjects, in many circuits, analog circuits, as well as particularly digital circuits. Or filters, digital filters में भी बहुत use होते हैं. So you are going to come across lot of applications of delayed unit. Then another property is a invertibility. So this I have to start. So this is a 110122. Invertibility. Now some system has to be some system can be designated or considered as a to have the property of invertibility. इसका मतलब क्या हुआ कि there is some inverse system which is existing. Now no need to explain, because I think I have written in very that mode only, lecture mode only. So if I just see the definition what it writes, तो अब देखो मुझे बस ये पढ़ने की जरूरत है. I don't require extra explanation to be given. So given one output, only one input could have caused it. So this is one definition. और बेसिकली आप समझ लोगे कि आपने जो सेट्स पढ़ा है, you have studied a set theory, so one to one mapping. So between input and output, there is a one to one mapping. So one input is going to produce only one output. Similarly, so if you are observing the output, you can figure out what was the input. So only one input could have produced it. Okay? So this is like a one to one mapping in a set theory.
So this is a first way to understand. Then second is a given the output of the system, we can uniquely figure out the input. ठीक है ना, अगर हमको आउटपुट मिल गया है तो हमें जो है इनपुट क्या रहा होगा, आई कैन यूनिकली फिगर इट आउट. ठीक है ना, ऐसा ना हो कि this might have been the input or that might have been input. No, you should be very specific. If you are very specifically able to figure out what was the input, then the system is possessing the property of invertibility. Now the another way to understand a system A, if a system A is invertible and we cascade a system B, ठीक है, which is inverse of system A. I will call that system B as inverse of system A. Then the output of overall system is an identity system. ठीक है, अगर हमने क्या किया, okay, so there is some input which is gone to some system which I say that this is invertible system. So if it is invertible system, then there exists or an inverse system which is A inverse, which is a B, and when I pass the output of this invertible system A to this inverse system, then the y2 that I am receiving or that I am getting is same as a input x1. ठीक है, so this overall system, so one system A and cascaded with the inverse system, so it is behaving like it is nothing but it is giving output like an identity system. Identity system matlab whatever input you are giving, you are getting the same output. ठीक है, so if there exists an inverse system to a particular system, then you can call that system as a, means you can say that the system possesses the property of invertibility. Okay, is it clear? Now let me go to the ये पिछले क्लास मेरे पास यहीं तक था, so let me save it and go to the next lecture. Yeah. Yes. Now, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. So there is a system. There is a system y equal to, there is a system, yes, y equal to x square. So this is suppose systems A is a y invertible system. Is y invertible system? The answer is no. So this y is not invertible system. Why? Because we cannot figure out whether the input was positive or negative for a given output. Suppose you get the output of y equal to 4. So what you can, you can just, if you want to just figure out, or if you want to find out the input, so the x could have a two values plus minus 2. ठीक है ना, तो 1-to-1 मैपिंग नहीं है. ठीक है, so that's why the system is not invertible. Now takes सेकेंड एग्जाम्पल. और पहला ये दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कहाँ चला गया भाई, देखें पहला एग्जाम्पल था क्या पिछले उसमें. let me find it out. ठीक, अरे मेमोरी लेस, यस, पहला एग्जाम्पल गायब हो गया. चलो कोई बात नहीं. Now just see the second example. Now the second example is, suppose yn, this is the system, yn is having value 0. ठीक है, so it is again a non invertible system. क्यों? क्योंकि हमको 0 आ गया और इनपुट कुछ भी रहे आउटपुट हमको 0 ही मिलेगा.
So there is no one-to-one mapping. ठीक है? The system that produces zero output sequence for any input sequence. So this is a sequence and it is producing zero for any input. So whatever input you are going to give, output is not going to respond. It is going to give you zero only. So this is not following the one-to-one mapping, or when I am observing the output, I am not able to exactly figure out what could have been the input. ठीक है? So if I am not able to uniquely figure out, if I don't have any unique input which could have produced this output, means I cannot say that the system is invertible. Okay. Now there are some examples and some of the comments I have mentioned here. Now what I will do, this will be going into your assignments. So whatever the star, wherever a star marks I will be putting. So what you have to do, you have to just work it out with your pen and paper, and you have to upload it through some assignment. So that I will be just making sure that you will be just able to find out the assignment. So now you have to go through these examples, and you have to just elaborate it. You have to solve it, and you have to convince yourself whether these systems are invertible or non-invertible. So first example, so it is a this is the equation. So there is an inverse signal or inverse system, और inverse system क्या है? Suppose yt equal to half yt, wt equal to half yt. So what I can do, so this is the inverse system. So if this is A, so this system is nothing but this is A inverse. ठीक है? So if I take xt as 1, xt अगर मैं 1 लेता हूं, ठीक है ना, 1 अगर मैं लेता हूं, so yt I get as a 2, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैं yt अगर 2 डालता हूं तो xt जो है, wt is nothing but it has to be equal to xt, ठीक है. So wt has to be equal to xt. So this is the inverse system that I have written for this system. So if you are able to write the inverse system, so this is A inverse, means the system is invertible. That's fine. So I have written that. Now see this system, second system. So yt equal to mod of xn. So suppose suppose the output ये क्या है, yn होना चाहिए. So yn has to be there. So if n means x, this n, xn, or this n takes the value 1 or minus 1, ठीक है ना? This xn, if it is a taking value 1 or minus 1, in both the cases the output is 1, ठीक है? So अगर output 1 है तो input क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, xn क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है और minus 1 भी हो सकता है, ठीक है? So input क्या हो सकता है? For 2 inputs you are getting 1 output. तो जब ये आउटपुट मिला, you cannot ensure or you cannot uniquely figure out what was the input, because there are 2 possible inputs. So this is a not invertible system. Similarly आप देखो शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये this is supposed to be an invertible system, and then you can just figure it out. And what you have to do, you have to work it out on your pen and using your pen and paper, and you have to just give the explanation of all the examples which are written here, ठीक है? Now suppose the E is a invertible, so how it is invertible, you have to work it out. Now coming to the next example. अब देखिए जैसे एक yt है, so yt is suppose this is a integrator, this is the integrator. So is integrator invertible? Is integrator invertible system? Of course. So whatever output you are getting from the you are getting at the output of the integrator, you just pass the output to the differentiator, or you just take the derivative. Again, you are going to get back your original signal. So
So if you have an input signal, xt, and then you have an integrator, and then you just connect a differentiator, then you are going to get the same output. So this integrator, so this differentiator is the inverse system for this integrator, that's for sure. Now the question is differentiator invertible system? Is differentiator in invertible system? इंटीग्रेटर क्या है? डिफरेंस इन्वर्टेबल सिस्टम है, और उसका इनवर्स सिस्टम क्या होता है? देयर इज अ डिफरेंशिएटर. नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएटर इन्वर्टेबल सिस्टम? हाउ यू कैन प्रूव, हाउ यू कैन फिगर आउट? सो यू हैव टू टेक सम सिग्नल, you have to pass it through the differentiator, ठीक है, and then you have to just pass it through some other signal so that you can get back your original signal. So if you are able to do that, then differentiator is invertible, else it is a not invertible. So क्या लगता है आपको? अब क्या है कि ओपेनहेम ने क्या किया, अपने लेक्चर में बस यहीं तक करके छोड़ दिया, और उसके बाद उसने जो है सवाल पूछ लिया कि भाई बताओ आप कि भाई ये डिफरेंशिएटर इन्वर्टेबल सिस्टम है कि नहीं है. तो होना तो चाहिए, लेकिन क्या मीन्स अगर उसने सवाल पूछ के छोड़ दिया है कि भाई आप पब्लिक खुद समझो, तो मैंने भी कहा कि मैं पास कर दूं आपको, आप समझो खुद ही, क्योंकि कुछ न कुछ इसमें जो है रहस्य लग रहा है, द वे ही जस्ट लेफ्ट इट इन हिज लेक्चर. क्या लग रहा है? इफ फ्रॉम द इनपुट ऑफ द, यही बात कह के उसने छोड़ दिया, if from the output of the differentiator we can figure out the input, the system is invertible. यही करके उसने छोड़ दिया, ठीक है. हमें तो लग रहा है कि है, मतलब डिफरेंशिएटर जो है उसका इनवर्स सिस्टम इंटीग्रेटर है. सो दिस इज माय मींस इंट्यूशन. और कुछ एग्जांपल नीचे मैंने मैथमेटिकली भी वो सपोर्ट किया है, but I don't know if I take some critical example it may fail, means I doubt. So if somebody can just throw some insight on this. किसी को कुछ करना है? somebody has to comment. सोते मत रहिए. Yes sir. होना चाहिए डिफरेंशिएटर जो इन्वर्टेबल होना चाहिए. Yes sir. It may be sir. आपको भी लग रहा है? Yes. पोलिंग का नहीं है इस पे क्या जुगाड़? इस प्लेटफॉर्म पे कुछ पोलिंग कर लेते, केबीसी टाइप है क्या? किसी ने एक्सप्लोर किया है क्या? नो सर, ऐसा तो नहीं सर. हैंड रेज करवा सकते हैं, फिर काउंट कर सकते हैं कितने बच्चे एग्री करते हैं. अरे इतना काउंट करने में तो फिर चलिए, अच्छा हैंड रेज करवा सकते हैं ना, चलो बाद में काउंट करेंगे. करो तो जरा हैंड रेज ही कर दो, थोड़ा सा जगे रहो तुम लोग. हैंड रेज करना वो जिनको लग रहा है. नहीं चलो ये कर दो. आप चैट पे भी तो डाल सकते हो. चैट पे मैं सवाल पूछूं क्या? अब चलो इतना टाइम पास नहीं करेंगे, कोर्स भी खत्म करना बहुत धीरे चल रहा है. नहीं अब तो मैं तेज पढ़ा दूंगा, अब तो मैं देखो मेरा फर्स्ट क्लास नोट्स है. चलो चलो तुम लोग चैट पे लिख दो, ठीक है. इज इंटीग्रेटर सॉरी डिफरेंशिएटर इन्वर्टेबल सिस्टम? यस है? जिसको लगता है यस वो जो है बस सिर्फ यस लिखो, मैं बस यस काउंट करूंगा, देखो कितने यस और नो, बस मैं काउंट करूंगा इसके बाद, ठीक है. चलिए, coming back to the next property, again very important property, and this is called causality. So causal system, agar property, some system possesses this property causality, the system is called a causal system. Causal system. Now again I don't have to make you understand because I have already written many definitions. अब देखिए पहला डेफिनेशन क्या है? आउटपुट एट एनी टाइम depends only on input prior
or equal to that time. So what happens that the output at any instant of time, ठीक है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम का आउटपुट, मींस सिस्टम आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट्स प्रायर और इक्वल टू दैट टाइम। जो सिस्टम का इनपुट है उस टाइम इंस्टेंट पे और उसके पहले जो इनपुट दिए गए हैं उस पे डिपेंड करेगा, फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। सो इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द फ्यूचर इनपुट्स, ठीक है। अब फ्यूचर इनपुट क्या है ये समझिए, अभी देखो समझाने की मैं कोशिश करूंगा बहुत कायदे से। अब दूसरा डेफिनेशन देखिए कि और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। भाई एक बात समझ में आ गया कि बस ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, तो बस यू जस्ट स्टिक कि भाई इनपुट जो है या तो जब किसी टाइम इंस्टेंट पे जो इनपुट दे रहा हूं उस पर डिपेंड कर रहा है, या उसके पहले जो कुछ इनपुट दिया गया उस पर डिपेंड कर रहा है। फ्यूचर में कुछ इनपुट दिया जाएगा उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है आउटपुट, ठीक है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेट करके देखते हैं क्या है। So causal systems are called non-anticipative. Non-anticipative in the sense that the system output does not anticipate future values of input. अब ये जो है थोड़ा बड़ा ट्रिकी है इसको समझना। मतलब फ्यूचर वैल्यूज, मतलब सिस्टम क्या है कि एंटीसिपेट कुछ नहीं कर रहा। जैसे ही एंटीसिपेट करना मतलब कि आप, मैं ये मान चल रहा हूं कि आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे, ठीक है। मैं जो है मतलब एंटीसिपेट कर रहा हूँ। मैं इसलिए एंटीसिपेट कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप भाई अच्छे स्टूडेंट हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, बहुत मेहनत से यहाँ पे आए हैं, तो एग्जाम को आप सीरियसली लेते हैं एंड यू आर कॉम्पिटेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटीसिपेशन। लेकिन सिस्टम जो है देखो इस तरह का कोई एंटीसिपेशन करेगा नहीं। सिस्टम इज नॉट गोइंग टू एंटीसिपेट एनीथिंग। एंटीसिपेशन मतलब समथिंग फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक, ठीक है ना। something which is not means yeah you are going to imagine or you are going to predict or you are going to sense something। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी फ्यूचर इनपुट को बिल्कुल ये जो है इंटरटेन नहीं करेगा, कैन नॉट एंटिसिपेट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये बात जो है इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगी, अभी थोड़ा सा और कोशिश करता हूं मैं। अब इसका देखिए और अल्टरनेटिव देखिए क्या है कि अल्टरनेट मैथमेटिकल वे ऑफ डिफाइनिंग कॉजेलिटी। मतलब दूसरा जो बात समझ में आया, एक तो हो गया कि भाई इनपुट करंट इनपुट और पास्ट इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। दूसरा आ गया कि जो सिस्टम है फ्यूचर इनपुट को एंटिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर ये नॉन एंटिसिपेटिव सिस्टम है, इट कैन नॉट एंटिसिपेट द फ्यूचर इनपुट्स। और ठीक है, अब एक तीसरा तरीका है इसको समझने का या समझाने का, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जैसा कि ओपेनहेम कह रहे हैं। अब इनका कहना है कि भाई कोई ऐसा सिस्टम है, ठीक है ना, अगर हमने उस पर एक इनपुट दिया x1 और आउटपुट आ गया y1, और फिर दूसरा इनपुट दिया y2 और आउटपुट आ गया y2, ठीक है। और अगर ये दोनों इनपुट्स इक्वल हैं, ठीक है, सो इफ द टू इनपुट्स आर इक्वल, सो दो टू आउटपुट्स आर सपोज टू बी इक्वल, ठीक है ना। ये दो इनपुट मैं जो है मैं क्या कर रहा हूं कि दो इनपुट में दे रहा हूं एट I am giving equal inputs to a system for up to some time, ठीक है, and I am getting equal output, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो सकता है कि भाई दोनों इनपुट्स जो है, ठीक है, अभी तो दोनों इनपुट इक्वल हैं, बाद में क्या हो सकता है कि इनपुट अलग अलग हो सकते हैं। दो अलग अलग मान लो इनपुट्स हैं, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या है, दोनों दोनों जो है बिल्कुल दोनों दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सिस्टम भी हमको क्या कर रहा है कि सिमिलर आउटपुट दे रहा है, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं दोनों इनपुट्स कुछ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। वो कुछ ऐसा जो मेरे दिमाग में आता है मॉडल कि भाई आप लोग मान लो कि 5000 मीटर का रेस दौड़ना शुरू किए, दो जो है एथलीट हैं, दोनों बिल्कुल सेम वेट और सेम उसके हैं, और दो राउंड तक दोनों साथ साथ दौड़े, ठीक है। देखने वाले को ये पता नहीं चल रहा है कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों तो एकदम से बिल्कुल एकदम से कदम मिला के चल रहा है, ऐसा ही होता है। उसके बाद पता चला तीसरे चौथे राउंड में फिर पता चलता है स्टेमिना,
अब जिसका स्टेमिना है वो अपना स्पीड में मेंटेन रखेगा, कुछ लोग बीच में रुक जाते हैं, कुछ लोग चलने लगते हैं। नहीं, तो भाई कॉजल सिस्टम ऐसा है, उसको पता नहीं है कि, और आपको भी नहीं पता है, या आप अगर जानते हो आपने दो मित्रों को, अभी तो मान लो एथलेटिक मीट भी होता है इस सेमेस्टर में, अब आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों को जाने नहीं हो। भाई आविष्कार वगैरह में तो पार्टिसिपेट किया, आपने देख लिया कुछ लोग अच्छा करते हैं, एथलीट भी होंगे कुछ लोग। इसमें कोई एथलीट है क्या? अरे कोई एथलीट एथलीट है इसमें? क्लास में कोई एथलीट है? अपने एथलीट मतलब अपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया हो किसी इवेंट में, एथलेटिक इवेंट में? नहीं है। अच्छा, तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि भाई आपके दो मित्र हैं, आपको पता है दोनों की औकात है, या फिर आप अपने स्कूल में जानते होगे कि भाई आपके 9th में जो बच्चा था, आपको पता है कि 9th में कौन सा बच्चा अच्छा एथलीट है। अब 10th में आप पहुंच गए, तब भी आपको पता है कि भाई इसने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया था और ये उसको तो बीट कर देगा। दो जो है, यू जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि भाई दो एथलीट जो है भाग रहे हैं 5000 मीटर, 3 राउंड जो है इक्वल बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई ये जो एक जो है ये इसमें ज्यादा स्टेमिना है, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन प्रीवियस ईयर्स। तो आपको पता है, तो ये जो सिस्टम हो गया, ये जो सिस्टम बीच में घुस गया, ठीक है, ये कुछ फीडबैक टाइप का, एक जो आपके पास कुछ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप का, या कुछ जो है, अगर एक ये लगा दिया जाए तो सिस्टम हो गया नॉन कॉजल। ठीक है ना? लेकिन ऐसे क्या है भाई, कोई बाहर से आया देखने, उसको क्या पता है? उसको कुछ पता नहीं है कि भाई दोनों दौड़ रहे हैं, इक्वली दौड़ रहे हैं, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा। ठीक है ना? तो क्योंकि, तो ये जो है कॉजल सिस्टम है कि भाई हमने मान लो 2 राउंड तक ऑब्जर्व किया, 2 राउंड तक देखा भाई दोनों बराबर ही हैं। अब आगे कौन जीतेगा मुझे पता नहीं है। ठीक है, बिकॉज मेरे पास कुछ उस तरह का फीडबैक और उस तरह का नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया, देखो क्या हो गया कि ये हो गया कॉजल सिस्टम। और जिसको ये पता है, अगर ऐसा सिस्टम बन गया जिसको ये पता है कि भाई इसमें ज्यादा स्टेमिना है और ये जीतना चाहिए, तो वो हो गया नॉन कॉजल टाइप। ठीक है, अब इसको देखो पढ़ने की कोशिश करते हैं, पढ़ के देखें समझ में आता है। अ सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल if and only if it has the property that if those two inputs are identical up till sometimes the outputs are also identical up till that time. ठीक है, a system is said to be causal if and only if it has the property that if those two inputs, मतलब ये दो इनपुट्स की बात कर रहा हूं, those two inputs are identical up till sometimes the output are also identical up till that time. ठीक है ना? थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि एक इनपुट ये है, देखिए पहला वाला, पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट। ठीक है, अब देखिए T1 T2 टाइम तक दोनों इनपुट क्या है, सेम है। ठीक है, और अगर मैं सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो क्या है कि T1 टाइम T2 टाइम तक अगर मैं सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो सिस्टम मुझे क्या है कि सेम आउटपुट दे रहा है। लेकिन सिस्टम को यह पता नहीं है कि उसके बाद गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि दोनों का इनपुट जो है, ये दोनों x1 x2 ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम को पता नहीं है। तो इस तरह का सिस्टम, मतलब ये हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज नॉट एबल टू एंटिसिपेट द फ्यूचर इनपुट। ठीक है, सो इन दैट केस द सिस्टम इज कॉजल। सो अप टिल, देखिए टाइम x t2 x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर y1 इक्वल टू y2। ठीक है, कॉजल सिस्टम डजंट एंटिसिपेट द फ्यूचर इनपुट। ठीक है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, हो सकता है मान लीजिए कि उससे आपको समझ में आ जाए। अब जैसे ओलंपिक वगैरह देखते हो, ठीक है, तो मान लीजिए कि वेट लिफ्टर्स हैं, तो एक कैटेगरी मान लीजिए 50 केजी का वेट लिफ्टर, यानी कि सभी एक कैटेगरी, मान लो 2-3 किलो का रेंज रहता है, 50 से मान लो 52, या फिर एक ही कैटेगरी में होते हैं 50, मतलब 50 केजी के ही होते हैं।
सो 2 वेट लिफ्टर्स हैं, एक चाइना का, मान लीजिए चाइना का हो या कहीं का हो, तो 2 वेट लिफ्टर्स हैं, तो दोनों का वेट सेम है, तो दोनों आपका जो है फिजिकली लगभग सेम ही लगेगा। वेट लिफ्टिंग शुरू किया, मान लीजिए कि सबसे पहले 90 केजी उठाना है, दोनों ने उठा लिया, ठीक है। फिर 100 केजी दोनों ने उठा लिया है, और फिर मान लीजिए कि जो है और बढ़ाए, फिर दोनों ने उठा लिया। तो सेम टाइप का इनपुट है और आउटपुट भी सेम ही आ रहा है। और अगर आप वहां से निकल लिए, ठीक है, 4 राउंड के बाद, है, तो आपको लगेगा कि भाई ये कॉजल टाइप का ही मामला चल रहा है। अब ये देखो मेरा, इट इज माय ओन मैनिफेस्टेशन, तो मे बी दिस मॉडल इज ए सुटेबली इज अ मोर अप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएटली depicting the causality of the system that you can tell। और उसके बाद क्या होगा कि 4 राउंड के बाद आप तो चले गए कि भाई चलो, उसके बाद फिर और वेट बढ़ा तो एक ने जो है एक परफॉर्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है स्टेमिना वगैरह और जो आपका स्ट्रेंथ है वो सब मैटर करता है, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ वेट भी होता है या प्रैक्टिस भी होता है। सो अल्टीमेटली जो है एक जो है ज्यादा लिफ्ट करेगा, एक से नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हमने जिस टाइम तक ऑब्जर्व किया वहां पे अगर दोनों जो है बिल्कुल सेम परफॉर्म कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ इनपुट है, सेम आउटपुट आ रहा है, आई विल से द सिस्टम इज कॉजल, ठीक है। और अगर मुझे पता चल गया कि भाई ये चाइनीज है, इसका ज्यादा प्रैक्टिस है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ तक है, ये यहाँ तक उठा सकता है, इस तरह का मैंने कुछ लगा दिया। आजकल तो इस तरह के सिस्टम होते हैं ना, अब क्रिकेट में आप देख रहे हो चलता ही रहता है कि भाई ये कैसे आउट होगा, इसको ऐसे बॉल करो, सभी बताता रहता है सिस्टम, वो बैठा हुआ, तो वो नॉन कॉजल टाइप का सिस्टम हो गया, वो लेके कोच बैठे रहते हैं ना, तो वो हो गया नॉन कॉजल टाइप का सिस्टम, ठीक है। सो आई थिंक आई हैव tried my best to make you understand what is a causal system. Now somebody has to explain me, then I will move ahead, because I have put lot of thoughts behind it to make you explain what is a causal system. Now somebody has to just explain it. अब 2-3 लोग जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक मैं रेस्ट करूंगा। हाँ सर, कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जैसे कि सर 2 सिस्टम है और दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होते हैं और दूसरे पर्टिकुलर टाइम t2 तक सेम रहते हैं और उनका आउटपुट भी उस टाइम तक सेम रहता है, तो सर उसे कॉजल से सिग्नल कहते हैं। 2 सिस्टम का, एक ही सिस्टम की बात करो ना। ये सर एक सिस्टम में 2 सिग्नल अगर होंगे तो। हाँ हाँ ठीक है, वो एक जो टाइम अंडर कंसीडरेशन है वहां तक सेम रहा तो हम उसको कॉजल सिस्टम कहेंगे। और बाद में सेम रहेगा कि नहीं उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर गारंटी ले रहे हो तब तो नॉन कॉजल हो गया, हाथ खड़े कर दोगे भाई अब हम नहीं जानते हैं, ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, तो वो हो गया कॉजल सिस्टम। चलो और बताओ भाई, कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? कोई और? एक आदमी और, one more response I want, then I will move। बताओ भाई, सोते मत रहो भाई, मैं नाम लेना शुरू करूंगा फिर। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, टीचर जो है पढ़ा के निकल ले उसका कोई फायदा नहीं है अनलेस अनटिल द क्लास इज इंटरेक्टिव। कोर्स कम कवर होगा लेकिन आपको जगे रहना पड़ेगा। अभी मुझे नाम लेने के लिए मजबूर मत करिए, somebody has to just give me another response। या फिर जिसने अभी जो बताया है, बालक जिसने बताया, क्या नाम है तुम्हारा बालक? सर शुभम सहाय। शुभम, हाँ, somebody has to just add और just और कुछ नहीं तो रिपीट ही करो। I want one more person to give me the response। If it is a bit different, then it's good। नहीं तो सेम ही रिस्पॉन्स रिपीट करो। हाँ भाई, बताओ कोई। अच्छा तो नाम लेंगे। सबसे पहले नाम, अब लीव कर रहा है, देखो ये समीम, ये भागा छोड़ के। देन मसूरा बेगम मसूरा बेगम। यस सर। हाँ बताओ।
Sir, in a casual system, if we provide two identical input, then it would provide this give the same output till some time. But after that time, we cannot predict what would be the output. What will be the output and definition के हिसाब से what will be the input, ठीक है, whether the input will be same or not, ठीक है. ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे पहला एग्जांपल है आपका, ये क्या है? दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज फिल्टर. ये आगे मूविंग एवरेज ऑपरेशन, ठीक है. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग द एवरेज xn is into the play, then the previous value and the advanced value, ठीक है ना. So this is a, so you are just making some operation at n equal at n, but you are considering a sequence value at x at n minus 1, and you are also considering the value at n plus 1, ठीक है. Means you are anticipating the input, ठीक है ना, because you are at n and you are anticipating the value of input at n plus 1. So this is the example of a non-causal system. Now again, but this is a, ultimately this is a average function or average system, ठीक है, which is averaging the three entities, the current value, past value and the future value, ठीक है. Then if I just replace the anticipating input as a, now this is, you see the second example, so value at n minus 2, value at n minus 1 and value at n. So if I just divide it, sum up the values and divide by 3, so this is a causal system, ठीक है. Okay, now so there are some catch points, and that is a, all memoryless systems are causal systems, ठीक है. Memory is always required for non-causal systems. I think you will be very much convinced, ठीक है. Even the causal system, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर causal system है, all memoryless systems are causal systems, but all causal systems are not memoryless. Now somebody has to just comment on that. All memoryless systems are causal systems. All causal systems are not memoryless. अब इस पे कोई कमेंट करो तो. हेलो, हाँ हाँ बोलो. हाँ हाँ. हम्म 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 Enough होला. सॉरी. हाँ भाई, ये कोई कमेंट करेगा इस पे? कॉजल सिस्टम जो है, कोई ऐसा कॉजल सिस्टम बताओ जो कि मेमोरीलेस ना हो. इसका क्या कुछ मतलब समझ में आ रहा है? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं. अब देखिए एक टर्म आता है नॉन कॉजल सिस्टम. नॉन कॉजल तो मैं आपको बता दिया. एक एंटी कॉजल सिस्टम भी आता है, ठीक है, एंटी कॉजल सिस्टम. इसके बारे में अभी जो है हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसके पास, इसको समझाने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो अभी पूरा है नहीं. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है.
pulse response of a system, that is HT. जब ये अभी आगे पता करेंगे, then we will be able to understand what do you mean by causal. causal समझ ही गए, what do you mean by non causal वो भी समझ गए, and what do you mean by anti causal. तो ये अभी आगे चल के समझेंगे, ठीक है. अब ये देखिए, you have to comment on the causality of the following systems. अब ये देखिए, अब ये अलग अलग हैं, इसका मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दिया है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, so there is a input which is required to be anticipated, ठीक है. so this is supposed to be non causal system. यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे x minus n, ठीक है. तो मान लीजिए कि फॉर नेगेटिव वैल्यू सपोज आई टेक n इक्वल टू -4, so yn is x4, so I am dealing at n equal to -4, but the output is x4, so it is taking a future value, ठीक है. so it is again non causal. Then there are some systems which are causal and non causal. So these are mathematical things. What you have to do, again you have to just comment on this, you have to work it out on the paper for all the examples, and you have to convince yourself through your means explanation, ठीक है. मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कीजिए, जैसे करना वैसे करिए, और यू जस्ट ट्राई टू टेक सम एग्जांपल और काउंटर एग्जांपल, ठीक है. एंड यू हैव टू जस्ट कन्विंस योरसेल्फ, वो देखते हैं आप कैसे करते हो. यू जस्ट वर्क इट आउट एंड you just try to just see whether your comment is same as the comment which is already given. Means you have to just give the reasons, okay. you have to just work it out and you have to give reasons. So if the reasons are same, that's fine, or you can just inform me, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कुछ गलत भी हो जो मैंने दिया है. So you'll have to check that also. So there is again some note which can help you out by just going through these problems or these examples. What you can discover is time scaling, reversal, square, or any operation on the time, or the means time n and t. So n is the time when n is the variable we use in case of sequence, and t means a discrete time, and t we use for continuous time. So this is a time variables, two type of variable, discrete and continuous variables. So if you are going to make any change in the time or modification in the time variable, so it is going to cause a non-causality. So you can just again verify it. Okay. बात समझ में आ गई. कॉजल सिस्टम, कॉजल सिस्टम का तो बहुत डेलिब्रेशन हो गया. नाउ कमिंग बैक टू द टाइम इनवेरिएंस. टाइम इनवेरिएंस, ठीक है. अगेन let us go by the definition. A system is said to be time invariant if time delay or time advance of the input signal leads to an identical time shift in the output signal, ठीक है. The characteristics of a time invariant system do not change with the time, ठीक है. तो xt अगर कोई सिस्टम है और xt आपने इनपुट दिया है, आउटपुट आपको yt मिल रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया कि इनपुट को बस एक थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना. टाइम स्केल पे बस शिफ्टिंग किया है. So xt minus t naught, so you will be getting the output y t minus t naught. तो आउटपुट भी आपको एक शिफ्टेड वर्जन मिलेगा, दैट्स ऑल, ठीक है. तो टाइम के साथ जो है सिस्टम का जो है रिस्पॉन्स क्या है, वेरी नहीं करता है, वो सेम रहता है. अभी कर लो, थोड़ी देर बाद सेम करोगे, एकदम बिल्कुल सिस्टम जो है बिल्कुल प्रिसाइज, ठीक है ना. हाँ, मतलब ये टाइम ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपका एक सिस्टम ले लो, क्या कहते हैं, कोई सा भी सिस्टम है, मान लो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है. ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं. अब ऐसे अभी जाड़े में क्या करोगे, अभी गाड़ी स्टार्ट करोगे, पता चला 8-10 दिन से स्टार्ट नहीं किए हैं,
पता चला बैटरी डाउन हो गया। या फिर आप देख, हाँ, सो देयर मे बी सिस्टम्स व्हिच आर which performance of the system depends upon some other parameters। ऐसे बहुत सारे आप सिस्टम्स देखोगे कि जो एक तो टेम्परेचर के साथ, अब जैसे हमारा अगर हम लें शेयर मार्केट लें, ठीक है, अब शेयर मार्केट क्या है कि that is not a time invariant system, the output of share market is highly time dependent। सुबह जो शेयर मार्केट खुलेगा, कुछ पता चला इधर उधर बवाल हो गया, पता चला 200-300 पॉइंट नीचे घुस गया, फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कुछ कमेंट किया, भाई ठीक है ये ऐसे चलेगा, वैसे फिर से रिकवर किया, और फिर शाम तक आते हुए कुछ हुआ है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप, अभी जैसे ये क्या है, ओमिक्रॉन, तो ये क्या है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले 10 दिन में मार्केट थोड़ा सा ऑन एन एवरेज नीचे ही रहेगा, ठीक है। सो द सिस्टम, द शेयर मार्केट, इफ शेयर मार्केट इज सिस्टम, इट इज नॉट, इट इज, you cannot say this is a time variant, this is a highly time variant system। हाँ, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आप समझ गए, टाइम वेरिएंट सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, और तो आप टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो है वो आराम से समझ सकते हो। हैं, अब जैसे आपका कैलकुलेटर है, अब क्या है कि 2 और 5 अगर ऐड करोगे तो 7 अभी भी देगा, रात को भी देगा, या 4 दिन बाद करो, या 4 महीने बाद करो, 4 साल बाद करो, ठीक है, दैट इज टाइम इनवेरिएंट। आउटकम, ठीक है, वो क्या है, फिक्स है, टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसी तरह आदमी भी देखते होगे, बहुत सारे आदमी देखो समय के साथ बदल जाते हैं, फिर आप कहते हो यार तुम तो बदल गए, आपको फर्स्ट ईयर में मिला, फाइनल ईयर तक जाते जाते आपको लगेगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी हो गया, या फिर बहुत अच्छा हो गया, इसने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। तो आदमी भी जो है टाइम, और बाकी जो है एक स्टेज के बाद नहीं बोलते, नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं आदमी का, यानी कि टाइम इनवेरिएंट टाइप का हो जाता है एक लेवल तक जाने के बाद। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत स्कोप हर समय रहता है, आदमी जो है खुद बदले या परिस्थिति उसको बदले, लेकिन वो थोड़ा बहुत बदलता है। तो हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल टाइम इनवेरिएंट टाइप का ही है आदमी। ये जो ह्यूमन को अगर एक सिस्टम कहें, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए क्या, एक एग्जांपल मैंने बड़ा अच्छा सा रखा है, जैसे आपका ब्रेन है, अब ये क्या है, टाइम वेरिएंट टाइप का सिस्टम है, इनवेरिएंट सिस्टम। नाउ समबडी हैज टू जस्ट थ्रो सम लाइट। ये शेयर मार्केट का तो मैंने लिख के रखा था, ये व्हाट अबाउट योर ब्रेन, ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट? वेरिएंट हाँ, टाइम वेरिएंट सर, है ना। अब जैसे 2-3 घंटे तुमको पका दिया जाए, अब जैसे अभी शाम का समय है, सो योर efficiency to just grasp the topic that I am teaching you is different from the one that I would have delivered in the very first hour। हैं, मॉर्निंग में पता चला 8 बजे भी मैं लेता, तब भी तुम सो रहे होते बहुत सारे लोग। 11-12 बजे वाला वो बहुत सही, उसमें ठीक है कि भाई थोड़ा सा जो है चाय वाय मिल गया, तो उसके बाद थोड़ा दिमाग भी चलने लगा। सो आई थिंक अधिकतर लोग जो है 11 बजे, 11-12-12-1 वाला, फिर जो है आपकी हालत खराब होने लगती होगी। सो आई थिंक द मोस्ट, किस समय आपका दिमाग जो है सबसे सही काम करता है, मतलब ग्रेस्पिंग पावर आपकी, मतलब कौन सा लेक्चर स्लॉट आपको सबसे सही लगता है, जरा बताइए मुझे। हाँ भाई, तो 2 बजे के बाद वाला। क्या बात कर रहे हो तुम, 2 बजे के बाद तुमको अच्छा लगता है? सर 10 बजे सुबह। 2 बजे, इसका मतलब तुम यार बहुत गड़बड़ आदमी हो तुम, इसका मतलब 1 बजे सो के उठते हो, इसका मतलब कितने बजे सो के उठते हो तुम हैं? तो जल्दी हूँ सर, 8 बजे के आसपास। घर पे तो 2 बजे तक नहीं सो सकते हो, घर पे तो नहीं कोई सोने देगा, हॉस्टल में तो कुछ सोते हैं 11-12 बजे तक हैं, कुछ कुछ बच्चे रखते हैं। देखो 10 बजे सही इसने बोला, इसका मतलब ये जो है 7-8 बजे, हो सकता है 6 बजे उठ जाती हो। कितने बजे उठती हो बच्चे सो के? सर 9 बजे सर। अरे बाप रे, 9 बजे लेट है फिर भी, ठीक है चलो सर ठीक है। अभी 9 बजे उठ रहे, वैसे लाइक 7 हाँ, साढ़े 7 उठ जाते थे। अच्छा ठीक है,
चलो ठीक है, अभी तो हो सकता है, अभी तो सब लेट ही उठते हैं, कम से कम 1 घंटे। चलिए, तो अब ये बताओ, ये जो टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट समझ गया या और समझाऊं? समझ में आ गई बात है? ये सर हाँ, आगे। मतलब थ्योरेटिकली समझ में आ गया, मैथमेटिकली कैसे होगा वो समझाता हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कुछ अगेन देयर आर सम क्या कहते हैं, सम एग्जांपल्स, एंड आई हैव ऑलरेडी रिटन वेदर दे आर टाइम इनवेरिएंट। टीवी मतलब वो टीवी नहीं, ये टाइम वेरिएंट बोल रहा हूं मैं, टाइम वेरिएंट, और टाइम TIV मतलब टाइम इन वेरिएंट। ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या है, इसको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करें भाई? कोई सा भी सिस्टम है तो सिस्टम मतलब ये तो पता है कि तुमको एक इक्वेशन आएगा x और y का, हाँ। अब उसमें हमको ये देखना है कि टेस्ट कैसे करना है। तो टेस्ट देखिए ऐसे करना है, टाइम इनवेरिएंस व्हेन अ सिस्टम इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग टाइम वेरिंग। अगर लगता है आपको, मैं देख के लग सकता है भाई ये क्या है। सो इफ अ सिस्टम इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग टाइम वेरिंग, एन अप्रोच ऑफ होगा, और अप्रोच टू शोइंग दिस, अप्रोच टू ही होगा लगता है, क्या टू ही होगा, कहीं से उतारा होगा लग रहा है, ये सही ही होगा, वही है। हम तो ओपेनहेम को ही फॉलो करते हैं, उन्हीं उसने ही कहा होगा। सो व्हेन अ सिस्टम इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग टाइम वेरिंग, एन अप्रोच टू शोइंग दिस इज टू सीक अ काउंटर एग्जांपल। ठीक है, यानी कि टू यूज आवर इंट्यूशन to find an input signal for which the condition of time invariance is violated। ठीक है, मतलब अगर हमें लग रहा है, डाउट हो रहा है कि भाई टाइम वेरिंग है कि नहीं है, तो हम एक जो है एग्जांपल ऐसा खोजें जहां पे कंडीशन जो है टाइम इनवेरिएंस का वो वायलेट हो जाओ, बस हम उसको कह देंगे कि भाई एक भी एग्जांपल हमको मिल गया कि भाई ये देखो, एक, क्योंकि एक भी एग्जांपल से आप अगर कोई भी चीज अगर प्रूव हो रही है, उसको अगर आप गलत कर साबित कर दे रहे हो तो वो गलत हो गया वो। ठीक है, so you have to produce some counter example, that is what he is saying. Now there is some system, this is the system, suppose this is the system. Now मैं यहाँ पे क्या करूंगा, I will take any input signal, so this is how we can just go ahead. So some input signal is taken, x1n हमने लिया, वो हमने लिया ये डेल्टा n ले लिया। ठीक है ना, दिस इज इम्पल्स। ठीक है, अब क्या हो गया, अब yn क्या हो जाएगा, y1n क्या हो जाएगा। सो अब यहाँ पे जो भी सिग्नल है, हमने क्या किया, xn की जगह हमने क्या कर दिया, जो भी हमने xn की वैल्यू ली है, x1n वो हमने लिए है इम्पल्स फंक्शन लिया है, वो हमने डाल दिया। सो दिस इज माय y1। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एक अब इनपुट हमने दूसरा लिया, हमने उसी का डिलेड वर्जन कर दिया। क्या डेफिनेशन क्या था कि अगर एक डिलेड, अगर हम एक इनपुट लेंगे तो आउटपुट भी हमको एक डिलेड वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, सो हमने उसी सिग्नल का एक डिलेड वर्जन ले लिया, तो y2 हमको, अब वहां पे इनपुट ये मिला था, y2 हमको ये मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि अगर y2 को अगर मैं एक डिले कर रहा हूं, y इट हैज टू बी इक्वल टू, ये जो है y2 इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, y2n-1, मतलब अगर इनपुट पे हमने शिफ्ट किया तो आउटपुट पे भी एक शिफ्ट मिलेगा। ये है ना कि n-1 जो है, अगर इनपुट पे हमने शिफ्ट किया, इनपुट को हमने अगर n-1 कर दिया तो आउटपुट पे भी हमें क्या हो गया, आई विल गेटिंग द सेम फंक्शन yn-1। सो yn-1 जो है y2n-1, ये क्या हो गया देखिए। सो इफ दिस फंक्शन विल बी, यानी कि जहां जहां पे n है वहां पे आपको n-1 रखना है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, सो y2n-1 विल बी n-1, क्योंकि n की जगह भी आपको n-1 रखना है, और फंक्शन तो आपका है ही डेल्टा n-1, ये फंक्शन है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो टर्म है, दिस टर्म
इट हैज टू बी इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। और ये दोनों टर्म देखिए इक्वल है नहीं, ये क्या है n मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n माइनस 1, और दूसरा टर्म जो आपको आना चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम से, वो क्या है n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा n माइनस 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, समझे कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया, ठीक है। सो चेक फॉर द फॉलोइंग सिस्टम्स फॉर टाइम इनवेरिएंस। इस तरह हमने देखिए कुछ सॉल्व किया हुआ है, सो यू कैन इजीली गो थ्रू दिस, you can just convince yourself, so easy for you to understand, ठीक है। यहां तक बात हो गई। अब एक बात हो गई लीनियरिटी की, कितने पेज पे पहुंचे, छोड़ो अब रहने दो। इसको मैं लीनियरिटी, अब आपका सिस्टम अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम वेरिएंट टाइप का हो जाएगा ना। और घर से फोन आने लगा है तो टेंशन हो रहा है मुझे, मेरा सिस्टम जो टाइम इनवेरिएंट हो गया, नहीं तो मैं भी पढ़ाता इसको। चलो मैं कम से कम, चलो इसको मैं खत्म करता हूं। क्या पढ़ लो थोड़ा सा, कल भी क्लास नहीं लिया था, ठीक है। हाँ भाई, कुछ लोग तो बताओ कि सर पढ़ाइए। चलो मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा। ओके, सो टाइम इनवेरिएंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब दूसरा आगे का प्रॉपर्टी देखिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है लीनियरिटी, ठीक है। अब लीनियरिटी क्या होती है, अब सिंपल डेफिनेशन पे जाएं। A system is said to be linear if it follows the principle of superposition। ये पहले भी आपने कहीं न कहीं सुना होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या होता है, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। होमोजेनिटी होता है इट इज रिलेटेड टू स्केलिंग, ठीक है। सो एडिटिविटी एंड स्केलिंग। सो फॉर a linear system, if y1 is the response due to x1 and y2 is response due to x2, then the response of, अगर मेरा इनपुट अगर ये हो a, मतलब स्केलिंग कर दिया पहले सिग्नल का, स्केलिंग कर दिया दूसरे सिग्नल का, दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका अगर जो रिस्पॉन्स, इसका अगर इनपुट में मैं ये डाल दूं अगर, सो इफ आई पुट दिस एज इनपुट, ठीक है ना, ZT, ये सपोज अगर इनपुट डालूं, तो जो आउटपुट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, जो ए स्केलिंग ऑफ द, जो आउटपुट हमें मिले थे y1 और y2 का जो स्केल्ड वर्जन होगा, और स्केलिंग किससे, जिससे हमने इनपुट की स्केलिंग की थी, ठीक है। तो दो सिग्नल्स अगर हैं x1 एंड x2, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट स्केल्ड इट, so and I have added it. So if the systems are if the system is linear, then the output I will be getting is a y1 plus b y2, ठीक है, where a and b are complex constants, ठीक है। And the same thing will be applicable for discrete time systems, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके लिए, लीनियरिटी के। लीनियर सिस्टम अगर है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वेरी वेरी फेमस, आपने कहीं सुना होगा। उसमें दो चीज आती है, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। होमोजेनिटी रेफर्स टू स्केलिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो है फॉलो होगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, चेक कैसे करें कि सिस्टम लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए सिस्टम है, ये है, ये सिस्टम है। अब क्या है, हमने क्या किया, दो इनपुट ले लिया, x1 x1n ले लिया, और हमको क्या मिल गया, y1n। y1n क्या मिल जाएगा हमको, n, और xn की जगह हमने क्या कर दिया, ये देखो ये गड़बड़ लिखा हुआ है, x1n एंड x2n, ठीक है। तो हमने क्या किया, xn की जगह x1n रख दिया, और दूसरे में क्या किया, xn की जगह x2n रख दिया, ये इनपुट हमने डाल दिया, और आउटपुट जो है हमको क्या मिल गया, y1n एंड y2n मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक हमने जो है सिग्नल
जो है एक सीक्वेंस हमने और डिजाइन किया इनपुट सीक्वेंस, वो क्या है x3n, और वो क्या है दिस इज a x1n प्लस b x2n। ठीक है, अब हमने क्या किया x3 को भी इसी सिस्टम में डाल दिया yn वाले सिस्टम में। सो y3 विल बी n multiplied by the input is xn3, so this is nothing but xn3, so this is input is nothing but this is a x3n, sorry x3n। ठीक है, x3n, अब हमने इसको डाल दिया यहाँ पे और हमने इसको फिर ओपन अप किया, सो आई हैव गॉट दिस वन। ठीक है, I have got this one. Output is linear combination of अच्छा, ठीक है। जस्ट a minute, ये क्या मिल गया, ठीक है। सो एन एक्स, ठीक है, और अब क्या है, just a minute, output is a linear combination of the individual responses। होगा क्या ये, लीनियर है क्या, आउटपुट इज द, जस्ट अ मिनट, अब ये देखिए, ये हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए एक तो ये हो गया, हमको ये मिल गया, हमने इनपुट डाला, हमको आउटपुट ये मिला। ठीक है, और दूसरा जो है वो किसके बराबर, ये जो है ये इट शुड बी इक्वल टू दिस वन। अब ये अगर यहाँ पे हम y1 क्या था हमारा, व्हाट y1 आई हैव गॉट n xn, सो n x1n, ठीक है, प्लस b, ये क्या है n x2n। So I think we are going to get the, ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं। Just a minute. So how it is being done? आपने क्या किया, x1 आपने y1 निकाला, आपने y2 निकाला। ठीक है, then one input you have just designed, that is x3n, which is a summation of the two inputs। ठीक है, और इसको आपने so then you are putting x3 into x3n into the system, and you are getting y3n। so y3n निकाल लिए, तो एक जो आउटपुट आ रहा सिस्टम का निकाल लिए, and it should be equal to this one, so you have to check with this one। so this is your a part and this is your b part। ठीक है, और a अगर इक्वल टू b होगा, इसका मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम ये क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये सिस्टम देख के आपको ये पता चल गया कि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, लेकिन जहां तक ये सॉल्व किया गया है, सो ये शो कर रहा है कि सिस्टम क्या है, ये सिस्टम आपका टाइम सॉरी लीनियर सिस्टम है। अब ये सिस्टम है, देखिए ये ऐसे भी लीनियर सिस्टम नहीं है, स्क्वायर हो गया तो ऐसे ही ये लीनियर सिस्टम नहीं है। आप ये करके देख लीजिए, आपने x1t लिया, y1t निकाला, x2t लिया, y1t निकाला। आपने क्या किया, यू हैव डिवाइस्ड न्यू इनपुट विच इज a x1t, b x2t। अब इसको आपने y3 पे डाला, उसको सॉल्व किया, एंड इट इज नॉट इक्वल टू a y1 प्लस b y2। ठीक है, जो कि होना चाहिए, जो कि कंडीशन है लीनियर सिस्टम्स का। सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट लीनियर। Then again I have given few examples to help you out, you can just go through this। ढेर सारे प्रॉब्लम्स हमने बता दिए यहाँ पे। सो आई थिंक लीनियरिटी इज क्लियर टू यू। हाँ भाई,
लीनियरिटी समझ में आ गई? नाम लें क्या फिर से? नाम याद कर लें कुछ लोगों का। बस एक टॉपिक बच गया, इसको खत्म भी कर देंगे अभी। बस थोड़ा सा जो है पढ़ने, कोटा में पढ़ते थे 4-4 घंटे बैठ के फालतू में, फालतू नहीं मतलब इसीलिए यहाँ पे हो, लेकिन 4-4 घंटे पढ़ते थे। हाँ भाई समीम, चाय वाय मंगवा लो, पकौड़े वकौड़े खाओ, थोड़ा सा और 10 मिनट पढ़ाएंगे। हाँ मिथिलेश, मिथिलेश कोई ना कोई बोलेगा तभी आगे बढ़ेंगे। मुकेश कुमार, निधि राय सो रहे हैं, जो जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब सो रहा है। नितिन शुक्ला, नितिन शुक्ला, निधि, पीयूष पटेल, खराब पर आप कोई बोलबे नहीं करता, समझ गए, कोई नहीं बोल रहा। अबे कोई नहीं बोल रहा है तो फिर तुम बोल रहा है, वो सुनाई दे रहा है, तुम किससे बात कर रहा है? हैं? ये देखो हमारे प्रदेश का कोई बालक है ये। अबे तुम तो बोलो, और कोई नहीं बोल रहा है तो। ऋतिक, जागो भाई, सोने नहीं देंगे इससे। कितने बच्चे हैं, अब अटेंडेंस भी ले लेते हैं। अरे तुम लोग पे बहुत मेहनत करना है हमें, कौन ये बता रहा था ना, कंसर्न नहीं, बहुत कंसर्न है, इसीलिए तुम लोग को देखो जगा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने का फिर कोई मतलब नहीं है। बाद में जब टेस्ट लेते हैं या फिर जब वाइवा लेंगे तो कुछ बताते नहीं हो, इसलिए आपको जगाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे तो हम खत्म कर लें, 5 मिनट का टॉपिक है, निकल लें, बंद कर लें, लेकिन वैसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना भाई। क्या होता है टीचिंग, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया टर्म, means how much learning has been imparted. I can just complete, I can just cover up the topic and I can just conclude, but how much learning has been imparted, I have to make sure. हाँ भाई, मैं वो है क्या मृदुल? यस सर। तो बोलते क्या नहीं हो तुम लोग? फिर से नाम लेंगे। अरे देखो मास्टर, देखो एक बार जो है ना, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मतलब यू हैव टू रिस्पॉन्ड, ठीक है ना, स्मार्ट की बात नहीं है, इट यू हैव टू रिस्पॉन्ड। हाँ फिर से एक, क्या नाम है, मेगावत? यस सर। सिंधुजा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेगावत सिंधुजा। मेगावत सिंधुजा। अभी कल से मैं आप लोग अटेंडेंस रजिस्टर लेके बैठूंगा और उसमें 10 लोगों से डेली बात करेंगे, देखें आपकी क्या हालत है, कैसे आप जो है इस कोविड टाइम में आप ठीक ठाक हो, कुछ परेशानी तो नहीं है। तो आपको जो है वीडियो ऑन करवा करवा के जो है आपका देखेंगे, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, किस मोड में हो, ठीक है। सो बी रेडी विथ ऑल दोज थिंग्स। पढ़ाने का देखो कोई मतलब नहीं है, 10 लेक्चर भी आपको समझ में आ गया, दैट इज गुड एनफ। सोते रहोगे, मैं 40 लेक्चर ले लूं, यूजलेस। 4 चीजें आपके दिमाग में अटक जाएं, वो ज्यादा काम का है। इसलिए जो है ये हम अपने आप को समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें इस बात कोई जल्दीबाजी है नहीं है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो नहीं हो, उसकी चिंता नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। एक बार मेरे पास नोट्स बन गया ना फेयर वाला, तो नोट्स दे दूंगा, उसके बाद ऐसे ऐसे पढ़ा दूंगा। किस दिन रात को पढ़ाऊंगा 3-4 घंटे, है। चलो अब लेट मी फिनिश द टॉपिक, तब ताकि अब स्टेबिलिटी आ गया, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी, अब इसके क्या है, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। फॉर एवरी बाउंडेड, अब एक डेफिनेशन क्या है देखिए, बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट, यानी कि फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट द आउटपुट इज आल्सो बाउंडेड, ठीक है।
यानी कि हमने अगर हमारा इनपुट मान लो जो भी है उसका एक रेंज है कि 1 से 20 तक या माइनस कुछ एक रेंज है, सम रेंज इनपुट जो है जो भी एक्स टी है मान लो या एक्स है, सो ये एक रेंज में है, इसकी वैल्यू एक रेंज में अगर है, बाउंडेड है अगर, तो आउटपुट भी हमको एक रेंज में ही मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। और स्टेबिलिटी के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आगे आप पढ़ोगे, ये भी बहुत जरूरी है कि सिस्टम स्टेबल रहे। लेकिन अभी वो सब चीजें आप कंट्रोल सिस्टम से और भी सिस्टम से वहां पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी हम जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका और कॉमन जो है डेफिनेशन वो क्या है, बाउंडेड इनपुट में हमको बाउंडेड आउटपुट मिले। अगर इनपुट बाउंडेड है मींस इनपुट इज विद इन सम रेंज, सो आउटपुट शुड बी आल्सो विद इन सम रेंज। दैट रेंज में बी डिफरेंट बट इट शुड बी इन सम रेंज। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देख लो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का। A system is said to be BIBO, bounded input bounded output। ये आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे वहां पे इस वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। If finite input leads to finite outputs, so if the input, ये जो देखो x जो है इनपुट है, if it is in the range, ये दिया है, इसका मतलब ये माइनस प्लस दोनों को कवर कर रहा है। आउटपुट भी है वो भी एक K2 रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, where K1 and K2 are finite रियल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है ना, अब ये बात हो गई। अभी आप एग्जांपल एक देखो, मैं वीडियो पे मैंने एग्जांपल देखा था तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जरा देख लें। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेटर मान लीजिए, बड़ा अच्छा इंटीग्रेटर का ये फार्मूला है। ठीक है, और इसका नाम है, अगर एक सिस्टम मैंने बना दिया जो ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर देगा उसको हम इंटीग्रेटर बोल देंगे। अब आप देखिएगा कि एक इनपुट हमने लिया, इनपुट हमारा देखिए ये है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, डिलेड यूनिट स्टेप फंक्शन ले लिया। सो दिस इज बाउंडेड इनपुट, क्योंकि इनपुट मान लो कि ये 1 है तो किसी भी टाइम इंस्टेंट जिसके लिए इनपुट डिफाइंड है इसकी वैल्यू 1 ही है। ठीक है, सो x इज हैविंग ओनली वन वैल्यू दैट इज 1। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट y? अब y क्या है, इसका एक रैंप फंक्शन है। आप इंटीग्रेटर में डाल के देखो ut यानी कि कोई कांस्टेंट और उसको फिर करोगे तो आपको t के टर्म में मिलेगा, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा t के टर्म मिलेगा। ठीक है ना, सो yt विल बी सम t। अब क्या है, ये बाउंडेड है ही नहीं, क्योंकि t अगर इंफिनिटी तक चला जाएगा देखो आउटपुट इसका बढ़ता जाएगा। यानी कि आज की बात करूं फिर मैं 10 घंटे बाद आउटपुट लूं तो 10 वो आउटपुट और बढ़ जाएगा फिर, और जो है मतलब दैट आउटपुट इज नॉट गोइंग टू बी बाउंडेड। ठीक है ना, अगर मान लीजिए सपोज इस तरह का आउटपुट हो जाता, किसी तरह से कर लेते तो हम कहते हैं भाई बाउंडेड हो गया, भाई यहाँ तक आया बस, इससे ज्यादा ये है, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और हो सकता है प्रैक्टिकल सिस्टम में क्या होगा, ट्रांजिस्टर ये सब लगे होंगे, सैचुरेट हो गया, मान लो 5 वोल्ट आउटपुट आया, उसके बाद आप इनपुट देते रहो, आउटपुट पे कुछ आएगा ही नहीं। सो अ प्रैक्टिकल सिस्टम मे बी दिस थिंग मे बी बाउंडेड। ठीक है, क्योंकि जब भी डिवाइस सैचुरेट होगा तो आउटपुट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिकल आप देख रहे हो, आउटपुट क्या है, बाउंडेड नहीं है, क्योंकि आउटपुट अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है और टाइम इन्फिनिटी ले तो अब आउटपुट भी इन्फिनिटी आएगा। सो अनबाउंडेड आउटपुट यू आर गेटिंग। ठीक है, सो एज द टी इंक्रीजेज आउटपुट आल्सो इंक्रीजेज। और इसका मतलब क्या है कि देखिए इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट द इंटीग्रेटर इज अ अनस्टेबल सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि बाउंडेड इनपुट के लिए ये बाउंडेड आउटपुट हमको नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीग्रेटर एक हो गया अनस्टेबल सिस्टम हो गया। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, और भी तरीके हैं चेक करने के, कैसे चेक करेंगे भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। सो चेकिंग स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम, इफ वी सस्पेक्ट, फिर से बात आ गई, अगर हमें लगा डाउट, इफ वी सस्पेक्ट दैट a system is unstable, then a useful strategy is to verify this. A useful strategy to verify this is to look for a specific bounded input that leads to unbounded output. जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में किया, एक हमने बाउंडेड इनपुट लिया और आउटपुट हमारा अनबाउंडेड आ गया। आई एम वेरी मच श्योर कि भाई ये जो सिस्टम है, ये एक भी मुझे अगर काउंटर एग्जांपल मिल गया इस तरह का कि मैंने बाउंडेड इनपुट लिया और आउटपुट अनबाउंडेड आ गया, तो मैं बोलूंगा कि भाई सिस्टम जो है ये अनस्टेबल है।
So find one such example that enables us to conclude that given system is unstable. अब ये कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं। फिर अब ये सारे जो हैं ये मैंने ऑब्जर्वेशन दे दिए हैं। Again you have to convince yourself that these systems are unstable. अब coming to one final thing that I will like to demonstrate. ये देखिए क्या है यहाँ पे। अब देखिए एक इन्वर्टेड पेंडुलम का एग्जांपल, एक पेंडुलम का एग्जांपल लेके आपको स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो दिस इज अब मैं वीडियो अपना ऑन करूंगा एंड आई विल बी ट्राइंग टू डेमोस्ट्रेट अ स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, सो ये मैंने जो है so I am just stopping my sharing। ठीक है, देन वीडियो ऑन कर रहा हूं मैं अपना और आप देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। दूर पीछे हटे तब दिखेगा। ठीक है, क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये स्कूल वाले मास्टर का डंडा नहीं है, मैं बहुत मेहनत से खोज के लाया हूँ छत पर से। सो दिस इज सपोज दिस इज जो भी आप मान लो एक रॉड है। ठीक है, वुडन रॉड है। अब क्या है कि अब मैं इस पे एक इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक इनपुट दिया। ठीक है, नाउ कैन यू रिलेट द एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस विद some concept of physics that you have studied? Pendulum, a sense of pendulum. I have given some input, then it is a then there is some output which is a bound. So input भी मेरा bounded है। देखो मैंने इतना इसको so I am giving a bounded input। मैंने यहाँ से जो displacement दिया इतना, and then I am getting a bounded output जो कि इस जो भी input दिया उससे कम ही है। ठीक है ना? And this is a stable system is stable। Now I just take an inverted pendulum। ठीक है, so this is inverted pendulum। now इसको मैंने invert कर दिया। now what, अब मैं जैसे ही इसको छोड़ूंगा it is going to fall। so this is unstable system। so inverted pendulum, solid pendulum, now this is unstable, this is going to fall in some direction। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको क्या कर सकता हूं, आई कैन गिव सम फीडबैक। मैं इसको थोड़ा सा जो है जगलिंग करके इसको मैं स्टेबल करने की कोशिश, जैसे ये मैं स्टेबल करने की कोशिश कर सकता हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग द विजुअल, आई एम यूजिंग द माय विजुअल सेंस एंड देन आई एम गिविंग द इनपुट टू माय हैंड एंड आई एम ट्राइंग टू मेक इट स्टेबल। सो आई एम जस्ट फोर्सिंग दिस सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग सम फीडबैक। ठीक है, so generally what may happen that we will have a system which are not stable। अभी आपने देखा कि इंटीग्रेटर आप इतनी जगह यूज करोगे, but integrator is a unstable system। now we have to just force, but हमें काम तो करना है उसके साथ, और unstable रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी। so we can just use some feedback mechanism to make such unstable systems stable। so we can use some feedback mechanism। so this is what was demonstrated by Oppenheim। so I think I can easily copy this, so I have done it। so is it clear to you? A stable system, unstable system, linear, time invariant, and all that। so what you required theoretically, I think I have given what I expect that you must have enjoyed the lecture। I have tried to make you understand using non-conventional examples, after doing some thoughtful exercise। so you can give your feedback। भाई अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर अच्छा लगा तो आप वही कर दीजिए। ठीक है ना, और नहीं है, if you want to give some feedback that's fine, so that we can just keep on improving our lectures। ठीक है, so okay, let me take the attendance and so the chapter 1 is finished।
You just try to solve the problems. I will be giving some assignments, and then we will have a quiz. Let me Excuse take me, the sir. हाँ Sir, can you please upload those notes on MS Teams? हाँ चलो ठीक है, तुम्हें नोट्स की जरूरत तो है, नहीं तो मैं सोच Yes. रहा था कि भाई क्योंकि मांगोगे नहीं तो मैं दूंगा भी नहीं, ठीक है ना, मीन्स यू हैव टू वैल्यू दीज थिंग्स। चलो Yes, तो sir. मांग लिया तुमने तो मैं आई विल टेक कपल ऑफ डेज, या फिर मैं अभी जो जितना है वो तो मैं कर दूंगा अपलोड, मैं कल करूंगा सारा, और जो पहले Okay, का भी sir. होगा उसको भी मैं करूंगा, फिर उसको भी मैं बनाऊंगा ठीक से, ठीक है। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गिव मी द फीडबैक, सो इफ यू लाइक द लेक्चर्स यू जस्ट कीप दोज थिंग्स पोस्टेड, ठीक है ना। और ठीक है, यू आर इनडिफरेंट, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लग रहा है अच्छा लेक्चर है, टीचर मेहनत कर रहा है, और बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग, आई हैव ट्राइड फ्यू थिंग्स, न्यू थिंग्स, कुछ तो मैंने ओपन हेम के लेक्चर से देखा था तो मैंने आपको डिलीवरेट किया, देन आई ट्राइड टू जस्ट फॉर्मुलेट सम मॉडल माई सेल्फ, एंड आई डोंट नो हाउ इट went, and whether you are able to appreciate that or not. So if you are able to appreciate, or if you have to make any comment, please feel free. Fine. It was awesome, sir. अरे रे रे रे, ये ज्यादा हो गया है। बट यू कैन, एक तो आपको लग रहा होगा, आपको जो है टीचर का एनर्जी लेवल जो है, ऐसा नहीं है कि मैं जो है 10 बजे आ गया था, देन आई जस्ट डिड मेनी थिंग्स, एंड देन I missed my lunch also deliberately, and still I think I am maintaining good energy because of my passion for teaching, that's for sure. पैसन तो मुझे है, बस इतना है, बाकी चीज का पता नहीं। So this is a 11/01/2020. ओके, सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट यूनिट, और इसका मतलब ये नहीं कितना टाइम लगा है पहले यूनिट में, तो बाकी में लगेगा। आई विल हैव अ वेल रिटन नोट्स, एंड थिंग्स विल बी मच इजियर एंड मच क्विकर। ओके, सो एनीथिंग एल्स बिफोर आई कंक्लूड दिस लेक्चर? और किसी को कुछ कहना हो, बताना हो? नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप करें।